الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد میرے مکی میرے مدنی زندہ باد میرے سر کے تاج زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میرے دل میرے روح میرے جسم زندہ باد میرے آقا زندہ باد میرے سرکار زندہ باد سیدی محمد زندہ باد میرے آقا زندہ باد محمد عربی زندہ باد خاتم النبیین زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ان پہ میرے ماں اور باپ فدا میرے آقا زندہ باد میرے آقا زندہ باد تاج تخت ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد محترم دوستو، ابھی انشاءاللہ عزوجل فتنوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے داران پیدا ہو رہے ہیں، مسیحیت کے دعوے داران پیدا ہو رہے ہیں، مہدیت کے دعوے داران پیدا ہو رہے ہیں، نت نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ ہم مکہ المکرمہ سے براہ راست آپ سے چند باتیں کریں گے۔ ابھی الحمدللہ ہم عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہیں اور آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آپ جانتے ہوں گے، مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظمیہ۔ یہ پچھلے 2 دن سے تقریباً نبا 7 کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور دیگر بھی کئی فتنے ہیں، اس کے اوپر مفصل آج گفتگو کرنی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جب تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو ہم براہ راست آ جاتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عبادات بھی کرنی ہیں اور دیگر معاملات بھی، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو بھی وقت دینا ہے۔ اور یہ جو خدمت ہے یہ سوشل میڈیا کی، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان فتنوں کا جو تعاقب ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے اور میرا اولین فریضہ ہے، اور میں اس کو سب عبادتوں سے افضل عبادت سمجھتا ہوں۔ میں اس کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، میں اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے کرتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے۔ اب میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوں، میری زندگی میرے آقا کی مرہون منت ہے، یہ زندگی عطیہ ملی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دین کی خدمت کروں، تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کروں، ختم نبوت کی محافظت کروں،
पूरी ज़िंदगी मैंने वक्फ की हुई है। जी, आपके कमेंट भी देखते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, आपके कमेंट पे गौर भी करते हैं और आपको जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। और हम आपसे मुखातब रहेंगे, फितनों के बारे में गुफ्तगू करनी है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप छोड़ के मत जाइएगा। ये ना हो कि 2 मिनट आप सुने और बाद में चले जाएं, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़वजल से, जिसके पाक दर पर हम मौजूद हैं, जिसके पाक घर में हम मौजूद हैं, इस हरम में हम मौजूद हैं। मैं अभी हरम मक्का में हूँ और ये बड़ी पाक सरजमी है। बुलाते हैं जिनको मेरे आका, वही मक्का और मदीना में आते हैं। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पर लोग यहाँ हाजिर होते हैं। बसूरत दीगर मुश्किल है, जिसको मेरे आका का बुलावा आता है वो ही आता है। अल्लाह की तरफ से मंजूरी होती है तो वो आता है, ऐसे मुमकिन नहीं है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह अज़्ज़वजल से कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल करेगा। और अल्लाह से दुआ इस उम्मीद से करनी चाहिए कि वो करेगा, कबूल करेगा। ऐसे दर्द के साथ दुआ करें कि बस ये आपके मुंह से निकली तो वो कबूल हुई, क्योंकि वो मालिक है। वो अल्लाह जो हमारे जिस्म और जान का मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आप लोगों की सोच और फिक्र से ज़्यादा वो आप लोगों से प्यार करता है। वो अपनी मखलूक से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन ये मखलूक है, उसके बंदे हैं कि उसकी नाफरमानी के अंदर 24 घंटे गुजरते हैं। तो बात हम कर रहे हैं इश्क रसूल की, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार मोहब्बत की और अकीदा ख़त्म नबूवत की। हम बात कर रहे हैं इन फितनों की कि जो फितने हमारे सरों पे मंडला रहे हैं। आज मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कुछ ज़ल्ज़ले के झटके भी महसूस हुए हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी अमान में रखे, मुसलमानों को अपनी अमान में रखे, मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत करे। जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने कोने में मुसलमान बसते हैं, मेरे आका के आशिक बसते हैं, अल्लाह उनकी खैर फरमाए, अल्लाह उनकी खैर फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान के जो बसने वाले उनकी हिफाजत फरमाए। जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम भरपूर दुआ गो हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक बात करनी है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने ये देखें, ये जिस्म दिया, इतना खूबसूरत रंगो रूप दिया, दुनिया की आसाइशें दी, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिला, क्यों मिला? क्या हमें ये जिस्म मिला, हमें जनाब खुशियों भरी ज़िंदगी मिली, आसाइश वाली ज़िंदगी मिली, पैसा मिला, दौलत मिली, तो बस अब कुछ नहीं, ख़त्म हो गया सब कुछ? फ़कत एक लफ्ज़ हमने कह के अल्लाह का शुक्र है या अल्हम्दुलिल्लाह कह के हमने गुजारा कर लिया, बस बात ख़त्म हो जाती है? क्या अल्लाह अज़्ज़वजल की खुशनुदी नहीं लेनी? क्या नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी नहीं लेनी हमने? क्या उनको राज़ी भी नहीं करना? होना तो ये चाहिए था कि हम फटे पुराने कपड़ों के अंदर होते, हमारे पास 1 इंच ज़मीन भी ना होती, 1 इंच ज़मीन के हम मालिक ना होते, 1 इंच ज़मीन की हमारे पास रजिस्ट्री ना होती, एक टाइम का खाना भी हमारे पास ना होता, दुनिया की कोई खुशी और आसाइश ना होती हमारे पास। होना तो ये चाहिए था। फिर भी हम कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तू जिस हाल में रखे, अल्लाह तेरा शुक्र। तू अगर राजी है तो हमें बस कुछ नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए था।
لیکن اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ اس کے محبوب کے دین کا کتنا ہم نے درد اپنے سینے میں بھرا، اس کے محبوب کے دین کی کتنی حفاظت ہم نے کی، اس کے محبوب کے دین پر اٹھنے والے جو حملے ہو رہے ہیں اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کی کتنی ہم نے حفاظت کی۔ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا تفکر کریں۔ یہ عزت ملی ہے، یہ شان ملی ہے، یہ شوکت ملی ہے، یہ سب کوئی محبوب کے قدموں سے ملی ہے۔ یہ نلین کا تصدق ہے، میرے آقا کے نلین کا تصدق ہے سب کچھ۔ دولت اور عزت تو کنجروں کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے، دولت اور عزت تو بدکاروں کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے۔ دولت اور عزت تو کفار کے پاس اور یہود و حنود کے پاس بہت ہے۔ دولت اصل میں کوئی چیز نہیں ہے، دنیا تو ایک مردار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور ان کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، مسلمانوں جاگو، خدا کے لیے جاگو۔ اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ یہ فیس بک پہ ابھی ہم لائیو ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کھیل ہے؟ فیس بک ایک کھیل ہے، ٹائم پاس ہے یہ کہ فارغ وقت ملا تو بس تھوڑا سا دیکھ لیا، کوئی لائیو ویڈیو چل رہی ہے تو اس کو دیکھ لیا، کمنٹ کر لیا، لائک کر لیا، شیئر کر لیا، بس یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ سوشل میڈیا کوئی کھیل ہے؟ میں نے کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کیا کہا تھا کہ میں اس کام کو، سوشل میڈیا کی خدمت کو میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، عبادت ہے یہ میری۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہزاروں نوافل سے زیادہ ثواب دے گا۔ ثواب کی میری غرض نہیں ہے، ہاں نہ ثواب کی غرض نہیں ہے، نہ تو جنت میں داخلے کی کوئی طمع ہے، لالچ ہے، نہ ہی جہنم کا کوئی ڈر اور خوف کہ اس میں جلیں گے، گناہ کیا تو جل جائیں گے، ہمیشہ میں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ مبشر شاہ کے نزدیک تو یہ نہیں ہے، مبشر شاہ کے نزدیک تو صرف یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، کوئی ایسا کام کر جائے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے بس۔ ہاں راضی ہونے کے بعد جہاں بھی پھینک دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ مالک راضی تو سب کچھ راضی۔ جنت اور جہنم تو وہ جہنم میں بھی پھینک دے تو ہم تو لڈیاں ڈالتے جائیں گے، بھنگڑے ڈالتے جائیں گے، جھومتے ہوئے جائیں گے کہ مالک راضی ہو گیا۔ بس محبوب راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، بس کوئی ایسا کر جائیں، کچھ ایسا کر جائیں وہ راضی ہو جائے بس۔ کم از کم یہ منہ جو ہے اس مالکوں کو دکھانے کے قابل تو ہو جائے، یہ منہ ان مالکوں کو دکھانے کے قابل ہو جائے۔ بات ہم کریں گے فتنوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کو شیئر کریں، شیئرنگ نہیں ہو رہی، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ روحانی باتیں ہو رہی ہیں، روحانی باتیں ہو رہی ہیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، غور و خوض ہو رہا ہے میرے آقا کے دین کے بارے میں۔ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دیگر دوست بھی شرکت کر لیں۔ ہم
अभी एक नया फितना जन्म ले रहा है, नित नए फितने आ रहे हैं। सब मुसलमानों को मिल करके इन फितनों का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया को देख लें कि सोशल मीडिया की भी आवाम एक इसको खेल समझती है। शायद कमेंट की हद तक या मतलब वो लाइक शेयर की हद तक आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तौर पे आप लोगों की खिदमत नहीं है। बड़े दुख और दर्द के साथ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मुनज़्ज़म नहीं है आप लोग, आप मुनज़्ज़म नहीं है। आप लोगों की रत्ती बराबर खिदमत नहीं है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, मुझे पता है क्या हो क्या रहा है। फितना अरूज के ऊपर है, नित नया फितना जन्म ले रहा है। लेकिन आप लोग हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। वो डॉक्टर इकबाल भी फरमाते हैं ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों। ये मफहूम है डॉक्टर साहब के शेर का। मुनज़्ज़म होना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो ये फितने जो है ना, ये दीन के ऊपर इतने हमला कर रहे हैं कि मैं इसका नतीजा क्या बताऊं आपको कि नतीजा क्या अखज़ होगा। ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक दर्द है जो बताना ज़रूरी है और उससे आगाही आप लोगों को देनी ज़रूरी है। इन फितनों के ऊपर मुनज़्ज़म काम कीजिए और जो इन फितनों के बारे में काम करे उसके साथ मिल करके उसको मजबूत करें, ताकि वो अकेला ना हो, वो तन्हाई महसूस ना करे, उसकी हौसला अफजाई हो। और वो जब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, एक मजबूत एक समझ लें कि एक हिसार कायम हो जाएगा। फिर इन फितनों का मुकाबला करना आसान होगा। अभी आप लोग बिखरे हुए हैं, अभी आप लोग जुड़ नहीं रहे। इन फितनों का अगर मुकाबला करना है तो इंतहाई हिकमत अमली से मुनज़्ज़म होके आप खुद अंदाज़ा कर लें कि एक शख्स फितने का मुकाबला करता है और फितना इतना ताकत में होता है कि वो उसको दबाने की कोशिश करता है। फितना ताकत में है, फितना पहाड़ है, पहाड़। और जो उसके मुकाबले के ऊपर काम कर रहा है, जो उस फितने को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो उस फितने को बेनकाब कर रहा है, वो एक समझ ले कि राई के दाने के बराबर है। फितना पहाड़ है और जो उसके मुकाबले पे काम कर रहा है वो एक राई के बराबर है। फितना एक हाथी है, जो है कल हाथी, और जो उस फितने के मुकाबले पे काम कर रहा है वो एक चींटी की हैसियत रखता है बज़ाहिर। आप खुद अंदाज़ा करें कि वो हाथी तो मसल देगा, उस चींटी को मसल के रख देगा। कभी आपने सोचा कम से कम होना ये चाहिए कि वो जितनी भी चींटियाँ हैं वो 1000, 2000, 5000, 10,000 चींटी मिल जाए अगर, तो वो उस हाथी को भी ज़ेर कर सकती है। वो राई का एक जो जर्रा था, एक दाना जो था, अगर राई के इस तरीके से दाने मिलते जाए, आप अंदाज़ा करें कि वो भी एक पहाड़ जितनी वो कुव्वत पैदा कर सकता है, वो एक हैसियत इख्तियार कर सकता है। कभी सोचा आपने? यहाँ एक बात मैंने करनी है। अब मुझे अमूमी तौर पे आदत नहीं है, मुझे मेरा ज़मीर मुझे गुवारा नहीं करता ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं। कुछ चीज़ें होती हैं समझने वाली, वो खुद बंदा समझता है। हमें दाद देने वाले
वाह वाह करने वाले माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, शाह जी तुहाडी क्या ही गल है, शाह जी क्या ही बात है। इस तरह की दाद देने वाले लाखों में और शायद करोड़ों में, करोड़ों में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड के अंदर मुझे दाद मिलती है, मुझे हकीर को पूरी वर्ल्ड के अंदर करोड़ों में है, कमो बेश। मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ, आपकी सोच और फिक्र से भी ज्यादा मुझे दाद मसूल होती है। दाद देने वाले काफी हैं, दाद देने वालों की कमी नहीं है। और ये वो दाद है जो मुझे चाहिए ही नहीं, इससे मुझे गरज ही नहीं है। फितनों के मुकाबले में हम उठते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पेश आती है और फितना जो है ना वो जनाब पूरे चौबन पे आता है, वो हाथी की तरफ बढ़ता है। हाथी जो है ना वो जो फितना है वो बढ़ता है चींटी की तरफ, लेकिन वो जो दूसरी चींटियां थी वो तितर बितर हो जाती हैं, वो नज़र भी नहीं आती। यहाँ कमरे में हम मौजूद हैं तो और लोग भी हैं, दीगर लोग भी हैं, थोड़ा सा शोर भी होगा, बड़ी मादरत के साथ। अच्छा, गुजारिश ये है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। बात ये हम कर रहे थे कि फितनों के बारे में जब उठते हैं कोई एक फर्द, दो फर्द या चंद फर्द, तो वो फितना जो है वो पूरी अपने असर रसूख इस्तेमाल करता है, वो ताकत को इस्तेमाल करता है, वो उन फितनों वो अपने मुकाबले में उठने वाले को दबाने की कोशिश करता है, किसी तरीके से डरा के, धमका के, उसको प्रेशराइज करके, उसके ऊपर जुल्म और सितम करके, कभी धमकियां देकर, कत्ल की धमकियां देकर, कभी मुकदमात चलाकर, उसको जलील और ख्वार करके उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं ये लोग कि किसी तरीके से ये दब जाए। ये एक आदि तो है बोलने वाला, चुप हो जाएगा तो बस काम खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझें, ये एक बंदा ही तो है, चुप हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझें, मैं रिपीट करता हूं, समझने की कोशिश करें कि ये एक बंदा ही तो है जो बोल रहा है, इसको दबा दो काम खत्म हो जाएगा, हम फितना फैलाते रहेंगे। और दूसरे भी डर जाएंगे उसका अंजाम देखकर, दूसरे भी डर जाएंगे उसका अंजाम देखकर कि अगर हमने भी आवाज उठाई तो हमारा अंजाम भी यही होना है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं आप? मुझे अपने मुंह मियां मिठू बनने का शौक नहीं है, वल्लाह बिल्ला तल्ला पाक सर जमीन पे बैठा हूं, अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है, अल्लाह दिलों के असरार को भी जानता है। मैंने पहले अर्ज की थी, हम ये जो खिदमत सर अंजाम देते हैं ये मेरी ड्यूटी ही है, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है गैबी तौर पर, क्योंकि उनकी लगाई हुई ड्यूटी के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये मैं महसूस करता हूं कि मेरी ड्यूटी है, मेरी उन्होंने फजल किया है, रहमत की है मेरे ऊपर कि मैं फितनों को बेनकाब करता हूं, मेरा काम ही ये है। आए रोज मुझे लोग कहते हैं कि शाह जी एक टीम बनाएं, टीम बनाएं, एक तंजीम बनाएं, तंजीम बनाएं, अगर इन फितनों के बारे में लड़ना है तो पीर बने, पीर बने, पीर बनेंगे तो मुरीद होंगे, मुरीद होंगे तो वो एक मजबूत हो जाएगा काम।
क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है, पीर बन जाए बंदा और उसके मुरीदीन फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आज बेहतरीन तरीका यही है, वो पीर जैसा भी फिर हो। इन चीजों का मुझे शौक ही नहीं है। एक होता है शौक हो, शौक ही नहीं है, यकीन माने शौक ही नहीं है। सिर्फ ये है कि आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग मुनज़्ज़म होकर काम करें, एक कुव्वत बन जाए। इसकी एक मैं मिसाल देना चाहता हूं ताकि बात समझने और समझाने में आसानी रहे। हमने बेनकाब किया झूठी नबूवत के दावेदारान को, बेनकाब किया हमने असद शाह को, उसने नबूवत का दावा किया और उसका अंजाम ये हुआ, फिर तनवीर कादरी ने उसको कत्ल कर दिया। हमने बेनकाब किया नासर सुल्तानी को, जिसने नबूवत का दावा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो अरेस्ट है, वो हमारी जो एजेंसीज हैं उनके पास है। हमने बेनकाब किया मदूद को, इंडिया का मदूद, जिसने नबूवत का मसीहियत का दावा किया और उसके भी काफी फवायद मुरतब हुए। हमने बेनकाब किया जाहिद खान मलऊन को, कज़्ज़ाब को, जिसने नबूवत का दावा किया हाल ही में। अल्हम्दुलिल्लाह उसके फवायद भी मुरतब होंगे इंशाअल्लाह। हमने फिर अपने घर में भी नजर डाली कि हमारे घर में भी तो कोई ऐसा चोर कहीं छुपा तो नहीं है। ये नहीं कि हम घर के बाहर ही देखते रहें, तो घर के अंदर झांका। जब झांका तो हमें नजर आया कि फैसलाबाद के अंदर एक पीर साहब हैं जिनका नाम है सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार। हमने नजर डाली इनके ऊपर और एक अरसे का हम देखते आ रहे थे। हमारा चूंकि ये काम नहीं है कि पीरों का रद्द करें या पीरों के बारे में, ये मेरा काम नहीं है। खुराफात तो पीरों के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। इनको बस अल्लाह ही हिदायत दे। लेकिन सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब की किताब आती है वारिस फकर, और उसके अंदर अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर कारी ज़रब लगाई जाती है। बर्दाश्त, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर कारी ज़रब लगाई जाती है वारिस फकर के अंदर, वो हमें मंजूर नहीं है। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, जो भी जनाब उसके ऊपर हर्जा सराई करेगा, किसी भी किस्म की का रखना डालेगा, वो हमें गुआरा नहीं है। वो चाहे कोई फिर कोई भी हो, मेरे अबू जानी क्यों ना हो। हाँ, ये पीर फकीर तो फिर बड़ी दूर की बात, मेरे बाप क्यों ना हो। अल्लाह की कसम, मेरा बाप भी अगर अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर हल्का सा भी वो कलाम करेगा या इस तरह का मसला कोई करेगा, तो मैं उसके मुकाबले खड़ा हो जाऊंगा। फिर मैं भूल जाऊंगा कि मेरा बाप है। ये सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर कारी ज़रब लगाई है। मुसलमानों आंखें खोलो, जब हमने इन चीज़ों को बेनकाब किया है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इन लोगों ने हमें चुप करवाने के लिए, हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए हमारे ऊपर मुकदमात दायर कर दिए, ताकि ये इन मुकदमात के अंदर ही उलझा रहे, ये डर जाए, ये उठ ना सके। मैं इस पाक सरजमीन मक्का मुकरमा में मौजूद हूं। ये वो ही अल्लाह है जिसका ये डर है, जिसने मेरी ड्यूटी लगाई है। खुदा की ड्यूटी के बगैर ये कोई काम कर नहीं सकता। मेरा ईमान है, मेरा ईकान है। अल्लाह का मुझ पे बड़ा ही फजल है। मैं उसका हकीर सा बंदा हूं। मैं नबी नहीं हूं, मैं रसूल नहीं हूं, मैं इमाम मेहदी नहीं हूं।
मैं मसीह नहीं हूं, मैं कोई होश कुतब अबदाल कोई वली नहीं हूं, मैं एक गुनहगार मुसलमान हूं, और मुसलमान जो गुनहगार है उनमें से भी सबसे निचले दर्जे का। मेरा कोई दावा नहीं है, वल्ला बिल्ला तल्ला कोई दावा नहीं, दूर दूर तक, दूर दूर तक। और अगर कभी मैं कोई दावा कर दूं तो उस वक्त आप गवाह रहिएगा, सारे मुझे झूठा करिएगा, मुझे जूते रसीद करिएगा। अल्लाह मुझे उस वक्त से बचाए जब मैं कोई दावा करूं। सज्जाद अली कह रहे हैं ये किताब कहां से मिलेगी? तवज्जो से सुने सज्जाद, तवज्जो से सुने, ये किताबें सबने मुझसे ली हैं। हर बंदे ही कह रहा किताब कहां से मिलेगी, किताब को क्या करना है यार, या तो कुछ बंदा करके भी तो दिखाए। कितने हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने इस किताब के ऊपर पकड़ की हो, कितने हैं बताएं मुझे। मैं आपसे सवाल करता हूं, यहां उलमा किराम सुन रहे हैं, मुफ्तियान किराम सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कितने मुफ्ती हैं, कितने आलिम हैं, कितनी आईडीज हैं। कोई एक बंदा दिखाए मुझे, ये गौर ये मैदान मुझे सबूत दें। ये बातें करने वाली नहीं है जो मैं कर रहा हूं आज, ये दिल के फफोले हैं। मैं वो ही कह रहा हूं, ना समझोगे तो मिट जाओगे या मुसलमान, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये फितने बढ़ते हैं, फिर त्यो हैकल हो जाएंगे, आपसे संभालने मुश्किल हो जाएंगे। आज आपने धरना दिया फैजाबाद के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी के खिलाफ, कल आपको धरने देने पड़ेंगे इन लोगों के बारे में। ऐ उलमा इकराम सुने, तवज्जो करें, आंखें खोलने खुदा के लिए। उस दीन की हिफाजत कीजिए जिस नबी के नाम का हम लोग खा रहे हैं। ये इज्जतें, ये ताज हमें जो मिले हैं, ये सरों पे जो ताज हैं, वो उस नबी के नलैन का तसद्दुक है। खुदा के लिए वो आंखें खोलें, उस नबी की इज्जत की हिफाजत करें। इन पीरों को जो है ना बिल्कुल एक्सपोज करें। जो पीर नबी के मुखालिफ चलता है उसको एक्सपोज करें। जो पीर मेरे आका की शान के ऊपर हर्जा सराई करता है, उनके खिलाफ चलता है, उसको एक्सपोज करें, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका अपना पीर ही क्यों ना हो। आंखें खोलने खुदा के लिए। मैं पीरों मरीदों वाला हूं, मैं बरेलवी हूं, सुन्नी हूं, मैं पीरी मुरीदी के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, मेरे इमाम ने, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने जो पीर की 4 शर्तें बयान की हैं कि ये 4 शर्तें होंगी तो वो पीर है। हाँ, वो पीर बनने का अहल है। उसमें पहली शर्त यह है कि आलिम बाअमल हो, आलिम दीन, पहली शर्त। ये पहली शर्त किस पीर में पाई जाती है? आंखें खोलें। जहालत जब होती है वो फिर वो खुद भी डूबता है, दूसरों को भी डुबोता है। यही काम सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब ने की है वारसे फकर के अंदर। मैं अपनी लाइब्रेरी में होता, वो खोल खोल के आपको दिखाता। वो बंदा कहता है मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि किताबें वो पढ़े कि जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना हो। लसानी सरकार कहते हैं मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है। यार मैं झूठ कह रहा हूं? मुझ पे यकीन नहीं है आपको क्या? चले मान लेते हैं मुझ पे यकीन नहीं है, खुद तहकीक कर लें, किताब पढ़ें, वारसे फकर पढ़ें। मैंने तो 2-3 वीडियो भी बनाई हैं यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है। खुदा के लिए देख तो लें एक दफा, हमारा मौक़िफ़ सुन तो लें एक दफा। आज पुलिस वाले हैं, अदालत वाले हैं, जज हैं, वकील हैं, उनको हम बता रहे हैं अल्लाह के बंदो ये देख तो लो, मरना नहीं है तुम लोगों ने। बीच में कॉलें करने वाले भी बस कॉल पे कॉल आ रही है, दरमियान में कॉल पे कॉल आ रही है, नहीं देखते, ना दिन देखते ना रात देखते, कॉलें करते हैं। कहा भी है कॉलें ना किया करें मुझे।
इतना भी पता है कि मैं अभी मक्का मुकरमा में हूँ और सऊदीया में व्हाट्सएप की कॉल नहीं चलती। ऐसे बंदों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ तो फिर बाद में वो नाराज हो जाते हैं। अब देखें, एक ही बंदे की बार बार कॉल आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर, बार बार कॉल आए जा रही है। कई दफ़ा कहा है व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉल ना किया करें, समझते नहीं। मैं अपने मुकदमे के हवाले में अगर अर्ज करूंगा तो फिर यहाँ पे कई ऐसे वो आ जाएंगे, वो देखो जी अपनी ही तारीफें करता है अपनी। ये वो बात नहीं है। आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, आपकी गैरत को जगाने के लिए ये बातें करता हूं। मेरी जिंद जान क्या है, मुबशर शाह कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। सज्जाद भाई कहते हैं इन खबीस लोगों को साहिब ना कहें। क्या कहें जी? वैसे मैं साहब कहता हूँ। साहब, साहब का मतलब होता है गाली देने वाला। साहब, सब सब गाली को कहते हैं ना, साहब। और मिर्जा कादियानी ने भी कहा था सब साहब बीन। मिर्जा ने कहा कि मैं इन गाली देने वालों को गालियां इसलिए देता हूं कि ये मुझे गालियां देते हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ साहब कहता हूं इन लोगों को। ये जितने भी बड़े बड़े खत्म नबूवत के चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, इनको मैं साहब कहता हूं, जानबूझ के कहता हूं, साहिब नहीं कहता मैं। हमारे जो पुराने सुनने वाले हैं वो हमारे मजाज को भी जानते हैं, हमें जानते हैं, वाकिफ हैं। तो ये जितने दो चार बंदे सुन रहे हैं, खुदा के लिए इतना वक्त तो नहीं होता, तो वो फिर लोग 2 मिनट की देखते हैं वीडियो और चले जाते हैं, देखते हैं चले जाते हैं। जितने सुन रहे हैं आंखें खोलें यार, आंखें खोलें। वो मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि तामुन करें, मदद करें। हाँ, तो कई दोस्त ये समझते हैं और इस मेरे लफ्ज का नजायज फायदा उठाते हैं, नजायज फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं ये देखिए ये हमसे पैसा मांग रहा है, मदद करें मतलब पैसा दो। ओ यार वाह वाह, क्या ही बात, कमाल की सोच है, कमाल की सोच है। बंदा उसने जानी कोई रख लेता है। मदद से मुराद ये है कि भाई एक बंदा लगा हुआ है काम करने, उसको मजबूत करें, उसकी पुष्टपनाई करें, उलमाए कराम पीछे ऐसे खड़े हों, हमारे दीगर जो दोस्त हैं मुसलमान हैं ऐसे खड़े हों, हाथों में हाथ बांध के, और फिर लड़ें, फिर खूब जंगें ऐसे जीती जाती हैं। अकेला बंदा तो जंग नहीं जीत सकता, कितना लड़ पाएगा, कितना लड़ेगा। हाफिज मोहम्मद आफ्ताब अहमद, तोजो करें यार, यहां जितने भी लोग हैं इनमें से हर बंदा, अगर मैं अभी राय लूं ना, वो ये कहेगा शाह जी असी तुहाडे नाल हां। ये मुझे इतना ये लफ्ज सुनने को मिला है, लाखों मर्तबा ये सुनने को मिला है। ये मैं बिला मुबालगा आपको कह रहा हूं, शाह जी असी तुहाडे नाल, हुक्म करो। अच्छा फिर आगे से 1 मिनट, फिर आगे से ये कहते हैं शाह जी तुसी हुक्म करो जरा सी। फिर हुक्म क्या करें, आपको नहीं पता क्या करना है, हुक्म करो। आपको नहीं पता क्या करना है, हुक्म करो। और जाहिद खान मलऊन के बारे में मुझे जर्मनी से काले, हुक्म करो। कि मैं क्या हुक्म करूं, आपको नहीं पता, हुक्म करो। रोटी भी कभी खाई, हमसे पूछ के खाई? कभी कहा शाह जी तेरा हुक्म करो सी 2 लुकमे खा लीजिए? हुक्म करो। हुक्म अल्लाह और रसूल का हुक्म, वो है उनका हुक्म। देखें उस अजान हो रही है,
ابھی ظہر کی اذان مکہ مکرمہ سے آپ نے سنی ہے، ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی اذان بھی سن لی آپ نے، ماشاءاللہ کتنی روحانی مجلس ابھی لگی ہوئی ہے، اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ عز و جل کے حرم میں بیٹھ کے، سبحان اللہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ اس کو لائیو سن رہے ہیں، ماشاءاللہ دل کے پھپھولے کچھ عرض کر رہا ہوں، اور بس مختصری عرض کروں گا، میں اشارے ہی کروں گا، میں کھول کے تو ساری باتیں بیان کرنے سے اب رہا بھائی، کئی اعتبار سے یہ کھول کے باتیں بیان کرنے والی نہیں ہیں۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملہ کیا، میرے آقا کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا، میرے آقا کی شان کے اوپر حملہ کیا، میرے صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائیاں کی، امہات المومنین کے بارے میں، میرے آقا کی حدیث کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، میرے اللہ کی شان میں، یہ سب چیزیں میں نے ثابت کی ہوئی ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی سن کر بھی کوئی یہ کہے کہ مبشر شاہ تو جھوٹا ہے، تو غلط ہے، اور پھر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیرت و حمیت نہیں ہے، یہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی بزدلی ہے۔ میرے ساتھ کیونکہ ہو چکی ہے، میں گزر رہا ہوں ان معاملات سے، آپ لوگ اس معاملے سے گزر نہیں رہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی فقط اکیلا میں میدان میں کھڑا ہوں، اکیلا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، واللہ باللہ تعالی میں حرم میں موجود ہوں، بس اتنے ہی سمجھ لیں۔ مجھے فون کر کے کہتے ہیں شاہ جی وکیل کروانا ہے، وکیل اتنے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ فلاں جگہ اتنے پیسے لگنے ہیں، اسی تواڈے نال ہاں شاہ جی، اسی تواڈے نال ہاں شاہ جی، وہ فلاں جگہ تے اتنے پیسے لگنے ہیں، اسی تواڈے نال ہاں شاہ جی، اسی تواڈے نال ہاں، وہ جج کو یہ ہے حساب کتاب، اسی تواڈے نال ہاں، وکیل کو یہ حساب ہے، اسی تواڈے نال ہاں، اور عالم پتہ ہے کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ میں اکیلا جاتا رہا ہوں، اکیلا عدالت میں جب میں جاتا ہوں اکیلا، خان ذیشان فرما رہے ہیں بندہ نچیز آپ کے ساتھ ہے، یہ لفظ مجھے سن کے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کان پک گئے ہیں میرے، ناراض مت ہوئیے گا، یہ ناراض مت ہوئیے گا، مجھے یہ لفظ نہیں سننا یار، نہیں سننا۔ مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ شاہ جی آپ سیف مقام پہ چلے جائیں، پاکستان میں آپ سیف نہیں ہیں، کسی اور ملک چلے جائیں جہاں پہ آپ فتنوں کے لڑ سکیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں پاکستان میں رہوں گا، میری پاکستان میری مادر ملت ہے، میں پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا نہیں، ادھر ہی رہوں گا۔ ہاں یہ ہے کہ پھر سرکار جہاں بھیج دیں، پھر پہلی دفعہ جب میں عمرے پہ آیا تھا نا، پہلی دفعہ تو میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا میں میرے یہ قدم اس سرزمین پہ لگے ممکن ہے، خدا کی قسم کہتا ہوں، جس بندے کو باندھ کے اس کے ہاتھ پیر پاؤں باندھ کے اس کو جکڑ کے اٹھا کے کسی جگہ پھینک دیا جائے، میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ نہیں تو آنا ہے تم نے یہاں، سبحان، یہ ہوا میرے ساتھ، ابھی بھی یہ ہوا الحمدللہ۔ بس جب حاضری تھی لکھی ہوئی، دل تو بڑا ہی تڑپا، پورا سال میرا دل تڑپا ہے اس سے مچھلی کی طرح،
कोई पल ऐसा नहीं गुजरा कि मदीने की जुदाई बर्दाश्त ही नहीं, रोते हुए गुजरा, आहो बका करते गुजरा। तो वो फिर हमारी हाजिरी लग ही गई है। बात ये मैं कर रहा हूं कि ये जो आप कहते हैं ना, हम साथ हैं, ये ना बोला करें मुझे, कोई साथ नहीं है, झूठ बोलते हैं आप, कड़वी बातें करता हूं, फिर आप नाराज भी हो जाते हैं। यहां फिर जब बातें होती हैं तो फिर यहां हमें एजेंसियों के लोग सुन रहे हैं। हाँ, यहां सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब के मुरीदीन सुन रहे हैं, या और भी कादियानी मरदई सुनते हैं, हमें और भी तरह तरह के लोग सुनते हैं। वो फिर गलत मफहूम और गलत नतीजा अखज़ करते हैं हमारी बातों से। फितने उठ रहे हैं। नबा 7 का जो फितना अभी आया है वो बहुत बड़ा फितना है। जाहिद खान मलऊन का जो फितना आया बहुत बड़ा फितना है। इस तरीके से और बड़े हैं, अल्लाह के बंदो बड़े हैं। मैं यहां रोने नहीं आया। हाँ, ये भी बात मैं बता दूं, बदगुमानी तो हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं ना, 2 मिनट लगाते हैं बदगुमानी करने में। मैं यहां रोने नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुजाहिद हूं, मुजाहिद खत्म नबूवत। मैं अपने नबी का सिपाही हूं। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे वो तीर जो आ रहे हैं हमारे सीनों पे, इंशाअल्लाह जो बर्छियां चलेंगी पहले हमारे सीने पे, फिर कोई जाएगा मेरे आका की जाना। हाँ, हम वो गुलाम हैं, हम मुजाहिद हैं, टस से मस नहीं होने वाले। कोई ये ना समझे कि हम पाँव पीछे हटा लेंगे, डर जाएंगे, दबक जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे। जब तक सांस में सांस है इंशाल्लाह लड़ेंगे अपने आका की इज्जत के लिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगियां अतियां हैं सरकार की इज्जत और नमूस के लिए। बस यही बात खत्म होती है इसके। और मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं गल विच कोई होर है। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं गल विच कोई और है। अल्लाह उलमाए कराम का साया ता दम आखिर हमारे सरों पर कायम रखे। अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की खैर अल्लाह इनकी गैबी मदद करे। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम साहब रिजवी दामादिल हुलाली की अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह इनको बरकतें दे। ये मेरे आका की इज्जत और नमूज के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह इन उलमा की खैर फरमाए, इन उलमा की गैबी मदद करे, अल्लाह इनको बरकतें दे, इनके दिन और रात में बरकतें दे, हमारी जिंदगियां इनको अल्लाह लगा दे। हम दुआएं करते हैं अपने उलमा के लिए, उलमा हमारे सरों के ताज है। लेकिन बात यह है मुझे सवाल भी किया जाता है कि आप इन उलमा को जाके कहें कि इस फितने की तरफ तवज्जो दें, लसानी सरकार का जो फितना है या दीगर जो फितने हैं। तो मैं आगे से यही बात कहता हूं कि भाई ये लोग मसरूफ हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं। अब वो बुजुर्ग लोग हैं, मैं इनको क्यों तंग करूं, उनको जाके तंग करूं, उनको जाके कहूं, पता नहीं उनके पास वक्त भी है कि नहीं। तो मेरे पास तो फ़ोन नंबर भी नहीं है, सही बात बता रहा हूं। तो मैं इन बुजुर्गों को तंग भी नहीं करना चाहता। मैं ये जो सोशल मीडिया के कम अज़ कम जो उलमाए कराम है, मुफ्तियान कराम है, हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, या सोशल मीडिया की दीगर जो अवाम है, इनसे गुजारिश है इन फितनों के बारे में आप खड़े हों, ज़रा हिम्मत के साथ खड़े हों। इंशाल्लाह ये आप दबा देंगे। अब हिम्मत तो करें, ज़रा उठे तो सही, थोड़ा सा उठे तो सही। आप ज़रा सिर्फ एक पोस्ट लगाया करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर, हर रोज एक पोस्ट आपका अगर कोई पेज है उसके ऊपर, आपका कोई ग्रुप है उसके ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक पोस्ट, व्हाट्सएप के ऊपर आपके जितने फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपके नंबर सेव है, एक पोस्ट डेली की सेंड किया करें सबको, इन फितनों के बारे, इन फितनों से आगाही के बारे, सिर्फ एक पोस्ट। आप यार दिन भर सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं लटरम पटरम क्या क्या करते रहते हैं, सिर्फ एक पोस्ट नबी की इज्जत और नमूज के लिए नहीं लगा सकते आप? मैं कैसे समझाऊंगा, मुझे समझाना नहीं आ रहा। ये बात पहले भी कई दफा कही,
कोई इसके नताइज मुरतब नहीं हुए, कोई टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद आएंगे कोई कहेंगे शाह जी जिंदाबाद। क्या ही बात, शाह जी जिंदाबाद। और शाह जी कहां से जिंदाबाद यार, काम करे कोई, नबी की इज्जत और नमूस का काम करे, शाह जी जिंदाबाद। ये कोई तरीका, ये शाह जी जिंदाबाद, छोड़ें इसको। मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन से आप सबको सलाम। मैं दुआ करता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस के जितने भी मुहाफिदीन हैं, अल्लाह उनकी खैर फरमाए। हमारे सुनने देखने वालों को जो हमें दुआएं कहते हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हर एक के दिल की जानता है, अल्लाह हर एक के दिल की जानता है। मैं दुआ करता हूँ कि जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा कि शाह जी दुआ करें, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हर एक की मन मुराद पूरी करे, नेक जायज़ हाजात जो है अल्लाह पूरी करे, दीन दुनिया की मुश्किलात जो हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां अल्लाह महफूज रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में। और वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल तो यही करता है मैं बोलता रहूं, लेकिन टाइम की भी किल्लत है, इबादत भी करनी है, दीगर मामलात है। बहरहाल इन फितनों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गहरी नज़र से, ऐसे शेर की आंख से इन फितनों के ऊपर नज़र रखें। ये गुलाम कादिर रिजवी कह रहे हैं कि मैं पोस्ट लगाऊंगा। ये एक बंदा देखें, एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं देखता हूं जनाब, मैं वॉच करूंगा आपको क्या करते हैं आप, ठीक है, मैं आपको वॉच करूंगा इंशाल्लाह क्या करते हैं आप। ये नारे मैंने बड़े सुने, एक अरसा हो गया सुनते हुए ये नारे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शाह जी असी तुहाडे नाल आइए। कोई साथ सूथ कोई नहीं, झूठ बोलते हैं आप लोग, बस दिल रखने के लिए करते हैं आप लोग। मैं भी इंशाल्लाह हाफिज मोहम्मद आफ्ताब अहमद, देखते हैं जी आप साहब, देखते हैं ये गोर ये मैदान कौन सा दूर है। दिन भर 24 घंटे हम लगे होते हैं फेसबुक पे, कभी उधर कमेंट करने, कभी पोस्ट नहीं लगाई है हमने, कभी कोई वीडियो बंदा रिकॉर्ड करता है, कभी लाइव आ जाता है, जैसे मैं लाइव आया हूँ। लाइव आया करें आप, हर एक के मोबाइल में तकरीबन सहूलत मौजूद है। लाइव आके 2 मिनट आप इन फितनों को बेनकाब करें, ऊपर टाइटल दें, यूट्यूब का चैनल बनाए चैनल, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। आपकी वीडियो आपके पैगामात आने चाहिए, फितनों के ऊपर आप बोलें। अब नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे बताएं। ये किस लिए रखा है ये मोबाइल, अल्लाह ने इतना खूबसूरत दिया, अल्लाह ने दिया, ये नेट की सहूलत आपको दी, अल्लाह ने दी। कब करेंगे आप दीन की खिदमत, बोले ना, उठें खड़े हों। सोशल मीडिया को आप भुला नहीं सकते, इससे जान छुड़ा नहीं सकते। अब फितना सोशल मीडिया पे आ चुका है, हाँ फितना सोशल मीडिया पे आपके घरों में पहुंच चुका है। बेनकाब करें इसको, खड़े हों, हिम्मत करें। और जो लोग इन फितनों के बारे में काम करें, एक दूसरे के साथ मिल मिला के, ऐसे हाथों में हाथ डाल के मजबूत चट्टान बने। और कभी किसी के साथ कोई वो जेल थाना कचहरी का कोई मामला हो जाए तो फिर फौरी इकट्ठे भी हो जाया करें। ये भी आखिरी बात ये है, फिर इकट्ठे हो जाया करें। हाँ, उस बंदे को अकेला ना छोड़ें, उसको तन्हाई का एहसास ना हो। कल ये गुलाम कादिर रिजवी कह रहे हैं कि पोस्ट लगाऊंगा, कल इनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाता है और हमें पता चल जाता है, पूरी पैरवी करें, फिर पूरी इस बंदे को एहसास तक ना हो कि यार ये बंदा अकेला है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात, कुछ बात खुद भी समझ लिया करें, जरूरी नहीं कि समझानी पड़े आपको, समझ जाया करें।
بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے ماں باپ آپ پہ فدا یا رسول اللہ، میرے آل اولاد آپ پہ فدا یا رسول اللہ، میری جان، میری روح، میرا جسم فدا آپ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ کی عزت کے اوپر فدا یا رسول اللہ، سب کچھ فدا یا رسول اللہ۔ سرکار آپ کی عزت رہے، آپ کا دین رہے، آپ کے دین کو سلام، آپ کی عزت اور ناموس کو سلام۔ یہ پیغام تھے، چند معروضات تھیں۔ جن دوستوں نے یہ ویڈیو شروع سے نہیں دیکھی، ابھی میں لائیو سٹریمنگ ختم کروں گا، شروع سے آخر تک دیکھیے، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اس کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کریں اور اس کی ویڈیو شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ باقاعدہ کام کریں گے۔ ابھی حرم مکہ میں ہیں، عمرہ شریف کی سعادت انشاءاللہ۔ آج میں جو عمرہ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی، والدین کریمین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ میں اپنے آقا کی آل اولاد کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے عمرے کرنے، ایک ایک عمرہ سب کا کرنا ہے۔ دعا کریں، یہ میں نے نیت کی ہوئی ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے 5 عظیم شخصیات، عظیم لوگوں کے لیے عمرہ کیا تھا۔ پہلا عمرہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس مرتبہ بھی پہلا عمرہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ابھی میں نے یہ پورا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی رشتے ہیں، ناتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کے فردن فردن عمرے، کچھ تو ابھی کریں گے، کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہاں سے میں واپس جاؤں، پھر بلا لیں، پھر جاؤں، پھر بلا لیں، بس آتا جاتا ہی رہوں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بس ہمارا کام ہی یہ ہو، سرکار کے در پہ آنا جانا، آنا جانا، بس یہی بس بات۔ گل وچ کوئی ہور ہے، گل وچ کوئی ہور، گل وچ کوئی ہور ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا یہ لبیک کو اتاریں، یہ زبان کی حد تک نہیں۔ لبیک کا مطلب ہے سرکار ہم حاضر ہیں، ہر دم حاضر ہیں۔ اس کو اتارنا ہے، عملی طور پہ، عملی طور پہ اتارنا ہے، اپنے جسم کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر بڑا دم ہے، اس نعرے کے اندر۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل تو کرتا ہے کہ ہم کم علمی کو ایسے شرمندگی، کم علمی شکیل بھائی کیوں، علم حاصل کریں نا، علم حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ میں تو آن لائن بھی پڑھانا شروع کیا ہوا ہے، آن لائن پڑھیں آپ۔ ہاں جی، میرا بھی دل نہیں کرتا آپ کو میں چھوڑوں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ ابھی احرام باندھنے جانا ہے مسجد عائشہ کی جانب انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی اصل میں ہماری نماز کا، احناف کی نماز کا وقت نہیں ابھی ہوا، احناف کی نماز کا بھی وقت نہیں ہوا، تو انشاءاللہ وقت پر نماز بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل نہیں کر رہا مجھے عاشقوں کو چھوڑ کے جاؤں، نبی کے عاشقوں کو چھوڑ کے جاؤں۔ یہ ایجنسیوں والے جو سنتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں مسلمان ہیں آپ لوگ، مسلمان ہیں۔ خود میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آنکھیں کھولیں، یا اپنی نوکری چاکری کی فکر نہ کریں۔ یہ نبی کے نلین کا تصدق ہے۔ خدا کے بندو، آپ نے مرنا ہے۔ اے پولیس والو، مجھے آپ لوگ سنتے ہیں مسلسل، مجھے پتہ ہے۔ اے وکلا حضرات، اے جج حضرات، اے انٹیلیجنس والو، اے ایجنسی والو، اور تم نے مرنا ہے، اور مرنا ہے تم لوگوں نے نبی کے عزت کے لیے۔ کم از کم آپ دیکھیں تو صحیح ہم نے کہہ کیا رہے ہیں، اور جو آپ کو ہم دلائل دے رہے ہیں اس کو دیکھیں تو صحیح خدا کے لیے۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں آپ لوگ، لیکن اگر ہماری بات میں کوئی وزن ہے، ہم حق پر ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ تو دیجئے، آپ جھوٹوں کا ساتھ تو نہ دیجئے خدا کے لیے۔ یہ جو آپ کو عزتیں ملی ہیں، جھوٹوں کا ساتھ نہ دیجئے، حق کا ساتھ دیجئے۔ یہی ہے بس آپ کو دعوت۔ مجھے بھی فون آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں لوگ کہ نہیں جی آپ کو یہ لوگ مسلسل
फॉलो कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं आपको, आपकी ये बातों को जो है ना बहुत कुछ रंग दे रहे हैं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। मुझे रोकने वाले रोकते भी हैं, लेकिन मैं लोगों के लिए थोड़ी कर रहा हूं। हाँ जी, हम या तो गलत हो ना, हम गलत नहीं है जब हम अपने आका के लिए बोल रहे हैं, अपने आका की इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। कोई जुबान हमारी बंद नहीं कर सकती, कोई 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 ताकत हमें रोक नहीं सकती। कमाल करती है। ना बोलो जी, ना बोलो जी, कुछ दिनों के लिए ये काम बंद कर दें, कुछ दिनों के लिए रोक दें, आप अपनी जुबान को बंद क्यों भाई करें, क्यों करें, क्यों रुके हम? न थमने वाले, न रुकने वाले, न डरने वाले, न झुकने वाले। इंशाल्लाह जब ये नारा लगाया है तो हम अमली तौर पे ये काम करके भी दिखाना है। हाँ जी, नारे तो बड़े लगाए हमने, आज तक नारे तो लगाए हैं, और किया है। हमें अल्लामा खादम साहब रिजवी ने सिर्फ यही बताया है, बेटा नारे नहीं लगाने, हाँ कुछ करके भी दिखाना है। हमें डॉक्टर शहबाज साहब जलाली ने सिर्फ यही बताया है और यही समझाया है, ये पट्टी पढ़ाई है हमें कि बेटा झुकना नहीं है, नबी की इज्जत के ऊपर पहरा देना है, मुसलसल देना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है। जी अल्लाह आपकी मदद फरमाए इस मिशन में, आमीन। दुआएं। ये बंदा बार बार कॉल किए जा रहा है, इसको मैं अभी ब्लॉक करूंगा, यकीन मान। ये मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करूंगा ना, इसको ब्लॉक करूंगा। गुस्सा आ गया मुझे, गुस्सा आ गया अभी। इतनी कॉलें करते, कहा भी ये कॉलें ना किया करो यार, व्हाट्सएप के ऊपर कॉलें शुरू कर देते हैं। बार बार कॉल काट रहा हूं, बीच में कॉल आ रही। काबा शरीफ की इमानत के तौर पर सलाम अर्ज कीजिए सज्जाद भाई, इंशाल्लाह जरूर जी, इंशाल्लाह। बस एक चीज ध्यान में रख लें यार, मैं अपनी एक बात बता रहा हूं, नबी की इज्जत और नमूस के लिए आप लड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा अपना एक मजाज है, आपको फिर किसी दुआ का किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है, वो दुआएं खुद निकलती हैं और खुद वो जानते हैं, वो मालिक जानते हैं बस। अगरचे अदुआ या रुद्दुल कज़ा, दुआ कज़ा को भी टाल देती है, वो है बरहक है, लेकिन मेरा अपना एक मजाज है, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको पता है बस। जी ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले, बिल्कुल ये नारा लगा लिया ना। अब अगर तो ये ना झुकने वाले ना बिकने वाले ना डरने वाले आपने लिखा है, अगर तो अमली तौर पे ये करके दिखाया और आप फिर डट गए उस फितने के मुकाबले में, हाँ फिर है, नहीं तो ये मुनाफकत हो जाएगी फिर, ये जुबान से कहा कुछ और किया कुछ और ना, ये नहीं। डट जाए फिर नबी की इज्जत के लिए, जो कहा तो वो फिर बन के दिखाएं खादम साहब रिजवी, फिर बन के दिखाएं डॉक्टर अशरफ साहब जलाली। हाँ समझे कि नहीं? नाराज ना हुआ करे मेरी बातों पे, मैं खरी खरी कर देता हूं, सरेआम कर देता हूं, तो मुझे माफ कर दिया करे। ये सलाम की दरख्वास्त है, फरहान अली रिजवी कह रहे हैं, जरूर जी इंशाल्लाह। लसानी सरकार के बारे में भी फरहान भाई को काम करें जी, लसानी सरकार का फितना है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा फितना है, खुदा के लिए काम करें, इस फितने के ऊपर काम की जरूरत है। भट्ट साहब आए हैं, शानी भट्ट, इस फितने के ऊपर काम करें यार, भट्ट साहब आप भी करें, मेहरबानी है, ये रिक्वेस्ट है। यहाँ कमेंट करने वालों के अलावा मैं देख रहा हूँ कितने लोग अभी इसको विजिट कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, बीच में बड़े बड़े एजेंसियों के बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े नमूने यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी गैरत और अहमियत दबो दी है। बकाऊ माल, जिनका मतम नजर सिर्फ माल दौलत और वो नौकरी है, सीट की हिफाजत, नबी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। हाँ जी, अब ये कालें बार बार आए जा रही हैं, इसको पता भी है कि व्हाट्सएप यहाँ पे नई कॉल चलती, सऊदी अरेबिया में कॉल किए जा रहे हैं दबल दबल। अब इसको मैं ब्लॉक करूंगा, ये बंदा जो भी है ना व्हाट्सएप पे जो मुझे कॉलिंग कर रहा है, इसको मैं अभी ब्लॉक करूंगा, यकीन मान।
बदतमीज। बड़ा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, कमाल ही हो गई। जी आप साहब, अब देखें, अब चौमुखी लड़ाई लड़ने से तो मैं रहा ना, अब वो भी फितना सबके बारे में मैं शुरू हो जाऊं। हाँ, जितनी मेरी रसाई है, जितनी मेरी बसात है, मैं लड़ूंगा। तो आप किस लिए हैं? आप भी तो कुछ करें ना। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात याद आ गई है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, शाह जी तुसी भी तो एक पर्चा दे हो ना, 295 दा इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तुसी भी दियो। ये आप भी कहेंगे मुझे कि पर्चा तो इसके ऊपर बनता था, इसने आपके ऊपर क्यों किया? ऐसा ये लफ्ज कहने वालों के हर एक को मैं कहता हूं, मैं मुंह पे कह देता हूं, मैं कहता हूं आप क्यों नहीं करते? आपका भी तो हक था, आपने क्यों नहीं किया? आप देना पर्चा, आप देना पर्चा, देना आप दे, अपने इलाके में दें, अपने अपने इलाकों से दे। कितने पर्चे आप लोगों ने दिए? कितनी FIR कटवाई आपने? 295C के कितने पर्चे आपने कराए? कोई एक भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, फकत कादियानियत पे अल्लामा फैज़ रसूल कादरी कहते हैं कि कादियानियत नहीं जी, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ अल्लामा साहब, अल्लामा फैज़ रसूल कादरी। हाँ, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि फकत कादियानियत के रद्द पे काम करें और कोई ना करें, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, जरा बराबर भी मुत्तफिक नहीं हूँ जी। हमें तो ये होना चाहिए कि नबी की इज्जत और नामूस के ऊपर हमला जहां से भी हो, हमने उसके बारे काम करना है। वो चाहे कादियानी हो, कादियानी नवाज हो, कोई पीरी फकीरी और सूफियत के रंग में कोई फितना आए, कोई महदियत मसीहियत के रंग में कोई आए, जो भी आए, फिर हम बोलेंगे। आमीन जी। चलो बस, बड़ी बात हो गई, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। और इस दर्द के साथ आपसे जुदा हो रहा हूं मैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूज का पहरा दीजिए अमली तौर पर, और जो पहरा दे रहे हैं उनका साथ दीजिए अमली तौर पर, जो पहरा दे रहे हैं उनका भी साथ दीजिए अमली तौर पर। आखिरी पैगाम यही है। आपके मैसेजेस आ रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी लामा साहब कुछ फरमा रहे हैं, ठीक है लामा साहब, मेरी बात भी समझ गए होंगे ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो हमारे सुनने वाले भी समझ गए होंगे। जी अभी हरम की तरफ जाएंगे। शानी पूछ रहे हैं कि आप जा रहे हैं? जी जा रहे हैं जी जी, ठीक है भैया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।